Okay, so basically Pakistan internal affairs में we if you guys remember कि बिल्कुल शुरू के lecture के अंदर I gave you this I showed you this diagram which says कि that any issue has almost always four aspects to it, which is your public policy and law considerations, your economics, your social aspects, and your norms and study of your education and things of that orientation. तो ये सारी जो चार चीजें हैं, ये चार प्रॉन्ग्स जो हैं आपकी स्टडी के, ये वो चार लेवल्स हैं जो किसी भी इशू को समझने के लिए जरूरी होते हैं. So basically we're going to start off with the economy since that is one of the most hot topics. उससे related इस वक्त current issue क्या चल रहे हैं. I don't know whether मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये एस्पेक्ट्स दिखाए थे कि नहीं. अच्छा, वहीं से फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया है. आई हैव कंटिन्यूड फ्रॉम द लास्ट लेक्चर जब हमने देखा था कि दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज बेसिकली व्हिच पाकिस्तान ओज टू द वर्ल्ड राइट नाउ. लाइक दिस इज अ 2019 रिपोर्ट और अभी IMF की एक और पेमेंट रिलीज हुई है दिस ईयर पाकिस्तान को, तो वो और भी बढ़ गया है. सो दिस इज अ फिगर फ्रॉम 2019 जस्ट सो वी नो. जुलाई 2019 तक $85.5 बिलियन पाकिस्तान ओज टू द वर्ल्ड राइट नाउ, जिसमें लार्जेस्ट पॉसिबल शेयर चाइना का है. अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी सॉर्ट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइजेस कि पॉलिसी कंसिडरेशंस में पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत बुरी तरह तबाह किया है यूएस के पीछे, and which at the end of the day has not been a substantial contributor in terms of aid. Aid as aspect से या loan aspect से जो है US is only about given Pakistan $1 billion as opposed to China which has given $15 billion to Pakistan. और फिर 5.6 billion was given by Japan and 6.4 billion dollars by Saudi Arabia, which is also a large contributor जिसको हम अपना friendly lender भी कहते हैं. काफी aspects में Saudi Arabia has always come to our financial aid and because they have more money, so इसलिए भी उनकी भी policy considerations जो है हमारे पास involved रहती है. Whenever a country gives you money, remember this, it is never free of cost. There is always an underlying policy consideration. That means कोई उनका मफाद भी होता है या अपनी soft power exert करने का कोई एक aspect या तरीका मौजूद होता है. So this is just the way you look at it कि भी आपको ये समझने की जरूरत है कि there are three aspects to understanding how the world generally works. It's a piece of advice also. देखिए, तीन चीजें जो है आपको ये you can apply this to your general life as well. कि three things you must always remember. There are no free lunches. Number one, nobody is going to give you any kind of aid or help for free. Number two, that there are no shortcuts. There is no way that this debt is going to pay itself off. Absolutely no way. Every government comes with this intention कि अगलों पे लाद दी जाती है and the loans and the burden just keeps rising to the point जब के एक collapse आ जाएगा. So there are no shortcuts to this. The painful reality is कि आपकी इस वक्त जो inflation है, जो एक आप बिल्कुल near indebtedness और collapse के करीब खड़े हैं economically, it's because of the last 20 years जब आपको लग रहा था कि हालात तब खराब है, जबकि actually हालात तब हो जाते खराब तो right now you'd be in a better position. However, ultimately the finally ये होना ही था कि you cannot escape the hard decisions. No government can. Ultimately ये hard decision लेना था, but sad reality कि COVID की वजह से ये hard decision fast track हो गए and this government will now be remembered as the villain जिसके दौर में 10% पे inflation hit कर गई थी 2020 के अंदर. So people don't really think in terms of the economy or the GDP. Almost 95% people in this country don't even know what a GDP entails या उससे मतलब क्या है, क्या होता है. So जब आपको चीज का पता ही नहीं है, आप एक ऐसी आवाम को वो चीज समझाने की कोशिश करें. अब देखें, जिस बंदे ने मैट्रिक में भी बायो नहीं रखी, you cannot explain surgery to that person. या एक अनपढ़ जाहिल को आप मैथ कैलकुलस नहीं समझा सकते. फॉर हिम कंसिडरेशंस आर सिंपल. पेट्रोल महंगा हो गया, दाल रोटी महंगी हो गई. सो यू कैन नॉट एक्सप्लेन टू एन इलिटरेट वोटर द पॉलिसी कंसिडरेशंस ऑन अ लार्जर गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे जाके मामला समझने की कोशिश
वो नहीं कर सकता, इट इज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। ये एक और वजह है कि पाकिस्तान का जो गवर्नर्स का स्केल है वो इस तरह का है कि बहुत सारा पेपर वर्क जो है ना आपकी गवर्निंग इलीट को और पब्लिक को डिवाइड करता है। तो ये जो एक पेपर ब्रिज है वो खला के अंदर वो पड़ा हुआ है ब्रिज, जिसको बाईपास नहीं किया जा सकता, which is why there is a lack of understanding. So there are absolutely no shortcuts to this painful reality कि अब ये जो डेट है ये पे ऑफ कैसे करना है। उसके लिए आपको इन्फ्लेशन बढ़ानी पड़ेगी, पेट्रोल की कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको अपनी तमाम बरामदात विच इज योर इम्पोर्ट्स जो है उनको कम करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट टैक्सेस, यू वोंट बी एबल टू बाय कार्स एनी मोर। और वो लगा भी दिया स्टेट बैंक ने, लोन आपके लिए लेना मुश्किल हो जाएगा मुल्क के अंदर। सो यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ डिफिकल्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ। सो दैट्स द सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि whenever something appears too good to be true, it is probably not true. Now, this is a very essential aspect. If it is too good to be true, it is probably not true. अब इसमें हम बात करते हैं critically speaking, we are going to look at the loans provided by China. चाइना आपका बहुत अच्छा दोस्त है, सब है, लेकिन ऑब्वियसली चाइना आपका रिश्तेदार नहीं, बल्कि रिश्तेदार भी कोई बगैर मतलब के बिल्कुल नो रिटर्न पॉलिसी के तहत आपको लाखों रुपया जो है वो उधार कभी भी नहीं देंगे। Even your own blood relatives will not do that for you. So why does it appear, why does every government constantly spouse this nonsense के जी मतलब चाइना हमारा इतना दोस्त है और ये और वो फला और ये बहुत ये करें। They have effectively put in debt your next 3 generations, कि आपकी अगली 4 generations जो है ये कर्जा उतारें individually, quite literally, in terms of taxes, in the way of price increases, और ये हिट आपको ऐसा ऐसा फील होगी इन द नेक्स्ट 10 years। होता क्या है कि जब एक कंट्री आपको इतना पैसा दे रहा है तो जाहिर है वो कुछ रिटर्न उसमें से एक्सपेक्ट कर रहा है। दिस रियलिटी कि पाकिस्तान एक कोई जोन इकोनॉमिक्स की जहां पे जाके ही पैसा, ये एक तो करप्शन जो हमारी है इस कदर मुल्क के अंदर, तो व्हाई इज चाइना जस्ट फनलिंग दिस मनी? They don't care how you are spending it, they just want it back eventually, और फिर उनको कुछ ना कुछ फायदा भी एंड रिजल्ट में हो रहा है। अब प्रॉब्लम है कि आप 2-4 रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि चाइना ने जो पैसा आपको दिया वो उन्होंने आपको कमर्शियल रेट्स पे दिया है। जो बार बार ये रिप्रेजेंटेशन दी गई कि जी आपको ये पैसा बहुत अच्छे रेट्स पे मिला है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यू हैव गॉटन दीज लोन्स ऑन नियर बार्गेन कमर्शियल रेट्स। कोई एक अजीम आपकी डील नहीं हुई इनके साथ, वो आपकी तरफ पैसा फेंक नहीं रहे। एंड बिकॉज फ्रॉम द गेट गो द एंटायर अरेंजमेंट ऑफ द सीपेक मनी, जो बार बार ये बात करते थे ओपोजिशन उस जमाने में कि जी आप ट्रांसपेरेंसी करें एक्सपेंडिचर में, ट्रांसपेरेंसी करें, अभी तक कोई ऐसी वाज़ेह ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऑल दैट मनी वेयर इट वाज गोइंग इफेक्टिवली, इसका कोई सर पैर नहीं है इस वक्त। यू कैन नॉट रियली ट्रेस द एक्सपेंडिचर और वो किस तरह लगा और क्या हुआ, कहाँ प्रोजेक्ट्स पे जा रहा है, कितना जा रहा है, और किधर किधर कितने करोड़ों और अरबों के हिसाब से घपले हैं, वो यू कैन नॉट ट्रेस दैट बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन द स्पेंडिंग that the way the government is spending this money. So it doesn't matter, China will get this money back one way or the other. आप उनको अभी पैसे ना दें, पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप पे प्रेशर और पॉलिसी एग्जर्ट तो करेंगे ही करेंगे हर सूरत। आप देखेंगे कि वो अपने वेंचर्स को उधर मूव करेंगे, और फिर ये भी देखें कि ये पैसा आप इतना ढेर उन्होंने आपको इसलिए भी दिया है कि अल्टीमेटली वो कॉन्ट्रैक्ट्स ये वापस उनके मुल्क में ही जा रहा है पैसा, क्योंकि वो लैंड कॉन्ट्रैक्ट्स, वो ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट्स, वो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स आप चाइनीज फर्म्स को दे रहे हैं। So for China, this is a win-win situation. China state right now is doing the major constructions of the railroads and the road constructions में वो involved है heavily. वो FWO के साथ भी partnerships के अंदर मौजूद है और वो NLC के साथ भी partnerships के अंदर मौजूद है, which means कि China is benefiting directly from the loans that it supposedly gave you. ये ऐसा ही है कि जैसे हम ये इसको इस तरह समझिए कि आपके घर में आटा नहीं, नाउ यू नीड, या आपको रोटी खानी है, आटा नहीं है आपके पास, आप अपने पड़ोसी के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। आपका पड़ोसी कहता है ठीक है मगर तुम मुझे ये आटा जो है डबल करके दोगी, अगले 3 सालों में दे दो या 1-2 महीने में दे दो, जिस तरह भी। वो आप कहती है ठीक है, और फिर दूसरी कंडीशन वो आपसे रखते हैं कि यार मुझे भी बड़ी भूख लगी है तो कैन आई कम ईट ऑल्सो।
तो वो ये शख्स आपको देता है 2 या 3, आपका नेबर आपको देता है 4 रोटियों का हिसाब काटा, आप कहते हैं ठीक है फाइन, आई एम जस्ट वन पर्सन, सो इफ दिस पर्सन ज्वाइंस मी, तो 4 रोटियों का आटा है, मे बी इवन इफ मैक्सिमम 1 या 2 खा लेगा, फाइन, ठीक है। So now this person comes over, you have to cook the food, whatever, you put your resources in, you use your gas, your oil, everything, और आप वो 4 रोटियां बनाते हैं, मेहनत भी आपकी लगती है, और ultimately फिर आप when you sit down to eat, and while you're eating you get 1 roti while the 3 are eaten by your neighbor. Now in this entire arrangement, who do you think has benefited absolutely? Absolute terms में फायदा किसको हुआ है सबसे ज्यादा? Obviously your neighbor. Nasif, they made you cook for them, they ate more than you, and ultimately you have to pay them back twice as much. So remember this, whatever, any financial arrangement that sounds too good to be true is probably not true. And when you look at the fine print, जब आप उसमें देखेंगे और चीजों को गौर से देखें, तो आपको realize होगा कि क्यों ये arrangement है वो की गई। और फिर आपको रियलाइज होगा जिस मुल्क ने पैसा डाला है वो इतना बेवकूफ तो नहीं है ना कि वो अपना पैसा जाया होने देगा। क्लियरली उनको सब्सटैंशियल एडवांटेजेस। ओके, सो कमिंग टू द इकोनॉमिक कंसिडरेशंस और क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी वो ऊपर ही नहीं जा पाती अल्टीमेटली। अब इसमें हम देखते हैं जो आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स दिए गए हैं, बेल आउट प्रोग्राम्स दिए जाते हैं किसी भी मुल्क को जब वो बिल्कुल ही बैंकरप्सी के उस पर पहुंच होते हैं, या उनको लगता है कि जी आप अपने लोन्स और लाइबिलिटीज पर डिफॉल्ट कर जाएंगे। डेट और लाइबिलिटीज के ऊपर अगर आप डिफॉल्ट कर गए तो फिर ये होगा कि आप अपने, देखिए एक तो होता है आपको जो बेसिक पैसे उधार दिए गए, एक वो होता है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट जो लग रहा होता है। पाकिस्तान ओरिजिनल अमाउंट तक तो पता नहीं शायद कभी पहुंचे। इस वक्त आपकी एक्सटर्नल डेट और लाइबिलिटीज, जिसको ये लिखते हैं IMF, वो आपका बेसिकली इंटरेस्ट है जो पेमेंट्स पे आप दे रहे हैं, वो ही 85.8% है आपके GDP का। 80-90% तक तो जो आपका GDP है, जो आप जनरेट कर रहे हैं पैसा, वो तो उधारों में चला जाता है। तो व्हाट इज लेफ्ट देयर फॉर द कंट्री इटसेल्फ? और अल्टीमेटली यही होता है कि जब when you keep borrowing this money repeatedly, तो फिर वो डेट बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है, फिर अपनी कर्जे को उतारने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है। सो दिस इज अ ट्रेंड दैट वी हैव सीन फ्रॉम द 50s, एंड 2008 में जब लास्ट ये पैकेज लिया गया था which was 9.98 बिलियन, और अभी इस वक्त आपका जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट बेल आउट पैकेजेस जो आपको मिले इस वक्त राइट नाउ, इट हैज बीन द लार्जेस्ट सो फार, और आपकी एक पेमेंट इस साल भी रिलीज हुई है। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो सारा आप पे कंट्रोल एग्जर्ट करता है, हम ये देखें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फिर आपके ऊपर कंट्रोल और पॉलिसी कंट्रोल कैसे एग्जर्ट करता है, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि फिर उसमें जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं वो जापान है, चाइना है, और अल्टीमेटली सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर US है। सो दिस इज वन वे ऑफ एग्जर्टिंग सॉफ्ट पॉलिसी कंसिडरेशंस। फिर अब आपको फोर्स करते हैं कि इसको यूं कर दें, बिजली की प्राइस बढ़ा दें, ये कर दें, फलां कर दें। But then they have quite a bit of control over the way you run the government, yeah, the way you run your country, because उनकी फिर कुछ डिमांड्स होती हैं कि जी इसको मीट करने के लिए आप ये करेंगे। So it's a good business. Lending is a very good business because आपको पता है कि जी इंटरेस्ट ही नहीं उतार सकेंगे तो ओरिजिनल अमाउंट इन्होंने कैसे वापस करेंगे। सिर्फ डेट एंड लाइबिलिटीज आप पूरी करें तो that's 85.8% of your GDP. That's a lot. और वो और भी ज्यादा है। डेट टू GDP रेशो कई ममालिक में बहुत ज्यादा, जो आपके एडवांस ममालिक हैं जहाँ पे सॉर्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर है, ये सब कुछ है, लेकिन वहां पे कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत हाई है। जहाँ पे ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में डेट टू GDP रेशो बहुत ज्यादा है, तो लेकिन उसका फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कंपेयर करें ना, चले एटलीस्ट वो पैसा ले रहे हैं जो भी उन्होंने किया तो वो लगा तो रहे अपनी पब्लिक के ऊपर। यहाँ पे तो मसला ये है कि कोई तरक्की भी नहीं हो रही, पैसा भी लिया जा रहा है। सो अल्टीमेटली देयर इज एक टाइम आएगा कि जिस तरह पाकिस्तान की ग्रोथ रेट और चल रहा है, there is a point when your middle class might even collapse from the burden of this inflation, from the burden of these loans जो कि individualize हो जाते हैं पब्लिक पे पूरी पे उनके। फिर एक पॉइंट आता है कि जी फिर आपकी मिडिल क्लास जब खत्म होने लगती है ना, दैट इज व्हेन द रेवोल्यूशन हिट्स अ कंट्री।
सो आपकी मिडिल क्लास इस वक्त खतरे में है, क्योंकि आपकी जो रेगुलर मिडिल क्लास होती है वो फिर पुश हो रही है या तो पॉवर्टी की तरफ या अपर रिचनेस की तरफ. एग्जैक्ट मिडिल क्लास थ्राइव नहीं कर पा रही इन हालात के अंदर, और वो कोलैप्स कर जाएगी वन पॉइंट और दिया. सो आपकी एक लोन बेस्ड इकोनॉमी, एसेंशियली आपकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, आप पैसा लेते हैं, आपकी इकोनॉमी को पैसे का बूस्ट मिलता है एक, और एकदम आपकी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ जाती है, राइट. सो if it's like you were awake for a few days and then you had a full night's sleep and then you woke up well rested and आप बहुत fresh feel कर रहे हैं everything, but then you pursue with the same cycle, आप फिर उसी पे दोबारा चल पड़ते हैं, फिर 6 दिन आप जागते हैं और वही बात है कि 7वें दिन फिर आपका अगेन बुरा हाल है, फिर एक दिन आप सो जाते हैं. सो दिस इज अ विशियस साइकिल, दिस इज हाउ पाकिस्तान रन्स इट्स इकोनॉमी. क्या आप शॉर्ट टर्म बेस्ड एक्चुअल इन्फ्लक्स ऑफ मनी होता है आपकी इकोनॉमी में, और बूम और बस्ट साइकिल होते हैं. बूम बस्ट साइकिल का मतलब ये होता है कि जी एकदम ग्रोथ आती है, फिर सारी जो आपकी, जैसे पिछली गवर्नमेंट क्लेम करती थी, ओ बहुत तरक्की हो गई, ये हो गया, रुपी तरक्की कर गया, बहुत पैसा आ गया, हमने रैपिड हमारी इंक्रीज आई है जी हमारे इंडेक्स के अंदर. ऐसा कुछ नहीं होता, वो टेम्पररी होता है, ओनली बिकॉज उस वक्त लोन्स के पेमेंट्स आप पे पास आ रही थी फ्रॉम चाइना. सो आपकी इकोनॉमी को एक टेम्पररी बूस्ट मिला था. लेकिन जब वही वाली बात है कि उधार लेके अगर आप पैसे खा लेंगे और कोई चीज खड़ी नहीं करेंगे तो यू विल बी बैक टू ग्राउंड जीरो अगेन, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड राइट नाउ. 2017 से अभी तक पाकिस्तान के पैसे की वैल्यू 30% गिर चुकी है. अब ये बात यह है कि आर्टिफिशियली रुपी को एक सॉर्ट ऑफ आप ज्यादा पैसा प्रिंट करके, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रही थी आखिरी दौर में नवाज शरीफ के बिल्कुल क्लोजिंग एंड पे. तो जब आप आर्टिफिशियली रुपी को मेंटेन रखते हैं ना एक सर्टेन नंबर पे, जो कि वो एक्चुअली वहां पे नहीं होना चाहिए, तो ये होता है कि फिर वो आप धोखा तो दे देते हैं आवाम को कुछ अरसे के लिए, लेकिन जैसे ही वो पॉलिसी करेक्ट होती है तो एक रैपिड जो है ना ड्रॉप होता है कदर में, किसी भी चीज की वैल्यू उसकी एकदम ड्रॉप होती है, बिकॉज आपने झूठ बोल के उसको एवरेज शो किया होता है कि जी इतने पे, असल में नहीं था. यू जस्ट प्रिंटिंग मोर मनी टू शो कि जी मतलब रुपी जो है वो 100 पे. ये जो भी इस वक्त वैल्यू है ये आज से 4-5 साल पहले हो जानी चाहिए थी, बिकॉज एक्चुअली हालात जब आपके पैसा जब खत्म हो रहा था, वाइंड अप हो रहा था, आपको एडजस्ट कर देनी चाहिए थी रुपी की वैल्यू पर. आपकी गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट ने नहीं किया, बिकॉज दे वर लाइक भाई हम चले जाते, अगली गवर्नमेंट डील करे इसके साथ. अगर वो इलेक्शन जीत जाते तो फिर वो कुछ चीजें सेट करने की पोजीशन में होते, बिकॉज उनको नजर आ रहा था कि देयर इज अ गुड चांस दैट दे कुड नॉट विन द इलेक्शन, सो दे रियली डिड नॉट केयर कि पैसे कहाँ करना है. उधर उधर करके उन्होंने आखिरी साल एक जो है वो एडजस्टमेंट में गुजारा, and they were like कि it would be now the official problem of the next government, which it was and which it did become, which is why you see these ministers screaming day and night कि जी हम पे इतना बर्डन छोड़ गए, हमें अजाब में डाल गए, ये मतलब. एक पॉइंट आता है कि यू डोंट फील एनी सिंपैथी फॉर देम व्हेन यू फील लाइक दे हैड 3 years, बट इट इज एक्चुअली ट्रू. आपकी ये एडजस्टमेंट 3-5 साल, ये इट वुड टेक एटलीस्ट अनदर डेकेड बिफोर ये एडजस्टमेंट्स ठीक होगी. अभी इत्तेफाक है ऐसा कि जी मतलब आपकी जो वैल्यू रुपी की इतनी बुरी तरह ड्रॉप हो रही है, इट माइट स्टार्ट रिकवरिंग इन अनदर 5-6 years, नॉट बिफोर दैट. ये सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं आएंगे, अभी तो और गिरने के चांसेस हैं. सो ये एडजस्टमेंट नहीं की गई इन द लास्ट 5-6-7 years. तो अगर एडजस्टमेंट टाइम से कर दी गई होती तो शायद अभी एकदम आपको ड्रास्टिक ड्रॉप ना फील होता और एकदम इतनी महंगाई ना फील होती. फिर दिस इज द प्रॉब्लम विद अ लोन बेस्ड इकोनॉमी कि जब आपको इंजेक्शंस पैसे के लगते हैं तो उस वक्त तो आप काम कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो पैसा खत्म होता है तो फिर देन यू आर बैक टू ग्राउंड जीरो, इनफैक्ट वर्स कंडीशन दैट यू वर इन व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ विद द लोन. अब इस वक्त आपकी जो है वो हालत है कि आपका जो फॉरेन रिजर्व्स है, पाकिस्तान इज ऑफिशियली बर्निंग थ्रू देम. इन 2019 आपका जो ड्रॉप था, आप वहां से देखें वही बात है कि कोई लोन दे देता है और अचानक से इंजेक्शन लगता है, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, लेकिन फिर झटका आता है, फिर वापस नीचे चले जाते हैं. सो यू हैव बीन थ्रू अ स्टेडी ड्रॉप सिंस 2018. थोड़ा सा रिकवरी होती है, फिर ड्रॉप की तरफ चले जाते हैं, फिर $2.5 billion इन लोन्स दैट यू गॉट इन 2019, फिर 2020 में दोबारा थोड़ा पैसा आपको मिला. एंड अल्टीमेटली होता क्या है
कि पाकिस्तान की क्रेडिट हिस्ट्री इतनी बुरी है कि फिर बिजनेस नहीं आता पाकिस्तान। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बड़ा बुरा है पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है कि क्लैरिटी नहीं है, ट्रांजैक्शनल है और सब कुछ, इट्स अ रिस्क बेस्ड पाकिस्तान के अंदर। आपको नहीं पता कि कब को कोई नुकसान हो जाए, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आती नहीं है। लार्ज बिजनेसेस डोंट कम हियर। और फिर उसके वो कोई सेफगार्ड्स नहीं है सिस्टम के खिलाफ कि अगर कोई चीज हो जाए तो जो एक पेपर ब्यूरोक्रेसी के थ्रू फंस जाएगा। और ये चीज देखते हुए बहुत सारे जो बिजनेसमैन है ग्लोबली वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट ही नहीं करते। हालांकि पाकिस्तान कुड बी अ बूमिंग रिजर्व, मगर ऐसा होता नहीं है। और अभी भी पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया कि जी क्रेडिट रिस्क है, यानी कि अगर आपने इधर पैसा लगाया या आपने दिया, इन्वेस्ट किया, तो देयर इज अ गुड चांस कि जिसपे आपने पैसा दिया या लगाया वो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो यानी तो आप फुल पेमेंट पे या तो पाकिस्तान में काम करें, क्रेडिट लाइन किसी के लिए ना खोलें, यानी कि उधार पे ना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपके पैसे डिफॉल्ट हो जाएंगे। इट्स अ वेरी बैड रेपुटेशन टू हैव। तो फिर कैसे आएंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स? तो अप्रोच और आउटलुक इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको अपनी ब्लैक इकोनॉमी को कर्टेल करने की जरूरत है। इस साल काफी इंप्रूवमेंट्स आई हैं, देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डिजिटाइजेशन, और काफी चीजें ठीक तो हुई हैं, देयर इज नो डिनाइंग दैट। लेकिन अल्टीमेटली फिर बात वहीं आ जाती है कि वी हैव स्टिल सच अ लॉन्ग वे टू गो। और इसलिए हमारी जो कहते हैं ना, जो आपकी इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स हैं और बिजनेस रेटिंग्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान भी, जैसे फिच एंड रेटिंग्स एंड स्टैंडर्ड्स ने जो है ना, एंड पुअर्स एक और ग्रुप है जिसने ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने आपको कहा है कि जी पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म डेट रेटिंग इज बी नेगेटिव। इसका क्या मतलब है कि अब पाकिस्तान फ्यूचर में कोई और पैसे लेगा तो उसको जो रेट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट जिसपे वो उसको लोन और मिलेगा, वो बहुत हाई होगा, जो कि और आप पे मुसीबत डालेगा। सो एक होता है आइडियलिस्टिक रियलिटी एंड देन देयर इज द एक्चुअल रियलिटी। यो अभी यो करंट पीएम इज गोइंग फॉरवर्ड विद एन आइडियलिस्टिक रियलिटी, एंड अल्टीमेटली जैसे उन्होंने कहा था कि जी मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं आईएमएफ से नहीं लूंगा, लेने तो पड़ गए उनको, क्योंकि आपके मुंह चल ही नहीं सकता बेल आउट प्रोग्राम के ऊपर। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस बेल आउट प्रोग्राम के बाद क्या होगा? अगर तो सब्सटेंशियल चेंजेस आ गए, आपकी एफएटीएफ की रेटिंग भी इंप्रूव हो गई, तो फिर शायद पाकिस्तान कैन स्टॉप बीइंग अ क्रेडिट रिस्क फॉर बिजनेसमैन, फॉर इंटरनेशनल डोनर्स। तो इसलिए जो है इस रिस्क को कम करने के लिए हालात को ठीक करना इम्पेरेटिव है, करप्शन को रिड्यूस करना इम्पेरेटिव है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइज्ड आपकी चीजें आ जाना जिसमें रिकॉर्ड सिस्टम्स, आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन जो है वो डिजिटली करवाना, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। अरे ये इसमें थोड़ा सा पॉलिसी कंसिडरेशंस भी आ जाती हैं, इसमें इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि इंडिया ने जो है काफी जो है वो जिंदगी हराम की हुई है पाकिस्तान की एफएटीएफ के अंदर, एंड इसमें क्योंकि इट हैज सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस, सो अभी तक पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट पे मौजूद है। हाउएवर ब्लैक लिस्ट नहीं किए गए हम, एंड हमने इस पे काफी खुशियां मनाई एज इफ दिस इज अ गुड थिंग। इट इज नॉट अ गुड थिंग टू बी इवन ग्रे लिस्टेड बाय द एफएटीएफ। अब उसके ऊपर काफी इश्यूज हैं, टेरर फाइनेंसिंग बीइंग वन मेजर कंसर्न, कि जी आप पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, ये जो आपकी जो इजी पैसा, जैज कैश और ये सारी चीजें हैं ना, दे आर अनट्रेसेबल सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि आपके फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से हट कर है। इन पे कोई टैक्सेशन नहीं होती, इस पे कुछ नहीं होता। तो इन सारी ट्रांजैक्शंस को एफबीआर के नोटिस में लाना या उनको कवर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। फिर आपके बॉर्डर स्कोर्स हैं, देयर इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ स्मगलिंग गोइंग ऑन, उसमें फिर आपका ड्रग ट्रेड भी है, वहां से भी पैसा आ रहा है। सो ये तो नहीं हो सकता कि जो पाकिस्तान की जो फॉर्मल इकोनॉमी है उससे एस्टिमेट किया जाता है, मेनी डिफरेंट एस्टिमेट्स एग्जिस्ट आउट देयर, बट देयर इज अ गुड चांस कि आपकी ब्लैक इकोनॉमी इज 3 times लार्जर देन योर ऑफिशियल इकोनॉमी। दैट्स अ ह्यूज नंबर, कि जो आपकी अनऑफिशियल ब्लैक इकोनॉमी है वो दैट इज ऑलमोस्ट 3 times योर एक्चुअल इकोनॉमी।
हवाला हुंडी इज अ टाइप ऑफ कहते हैं ना फाइनेंशियल इशू है कि जी मतलब आपको जो है ना ये जो सिम फोन्स और इस तरह से आउटसाइड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती है ना, ये टेररिस्ट नेटवर्क्स यूज करते हैं बिकॉज इनको ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। किसी और के नाम पे आपने किसी और के शनाख्ती कार्ड पे पैसे भेज दिए और किसी और ने किसी और के शनाख्ती कार्ड पे रिसीव कर लिए। सो दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आई हैव अ मेड, तो जिनका तनख्वाह जो है हम भेजवाते हैं तो वो किसी और ही बंदे के नाम पे जाती है, ना उसके अकाउंट में जाती है, उसका अकाउंट ही नहीं है। सो यू रियली हैव टू ब्रिंग योर सर्विस, ये जो अंडर द टेबल सर्विस है सारी, इसको आपको सॉर्ट ऑफ लीगलाइज करने की या इसको ट्रैक करने का कोई सिस्टम आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है पाकिस्तान का 2010 का, वो इतना एसेंशियली इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सका पाकिस्तान में आज तक। So right now, according to the Asian Development Bank, your inflation is supposed to get better in 22. मतलब 7.5 के हिसाब से इंक्रीज करेगी rather than 8.9 जो इस वक्त है, which is why everybody is feeling the burn right now। 5 रुपए बढ़ गई एंड सब कुछ। इशू क्या होता है, इशू आपका ये नहीं है कि जी आपकी कीमतें बढ़ी, कीमतें तो पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। ये जो आपकी मिनिस्टर्स आके कहते हैं कि जी पैसा हमारे हमें एहसास नहीं है, अभी भी पाकिस्तान में कीमतें कम है तेल की, होंगी दुनिया की निस्बत कम होंगी। भाई पॉइंट ये नहीं कि तेल की कीमत कम है, पॉइंट ये है कि उसके वर्सेस जो आपकी एवरेज इनकम है वो सिंगल इंडिविजुअल की, जो आपका परचेजिंग पावर है वो कितनी है, क्या उसमें इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ है। मसला सारा यही है कि जी आपकी सैलरीड क्लास वही पैसे कमा रही है जो आज से 5 से 10 साल पहले उससे आवाज चल रही थी, उसमें बहुत स्लो इंक्रीज आया है, जबकि आपकी महंगाई में बहुत तेजी से इंक्रीज आया। तो दोनों चीजें मुतवाजन नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग स्पीड पे इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो आपकी सैलरीड क्लास है उसको बहुत ज्यादा फील होता है जब मामूली भी सा चेंज आपकी उसके महंगाई में हो जाता है, क्योंकि वो तो पुरानी सैलरी उसी पे चल रहा है, तो उनका बजट इंक्रीज हो गया, आपका जो किचन है वो उसका खर्चा बढ़ गया। सो बेसिक नेसेसिटीज मीट करने के लिए आपकी जब कॉस्ट इंक्रीज होती है और आपकी सैलरी वही रहती है, तो दिस कॉजेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इट कॉजेज और फिर इट इज अ डोमिनो इफेक्ट, इट लीड्स टू मोर करप्शन, मोर अदर इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते हैं। फिर आपकी उनके लार्जेस्ट सैलरी क्लास गवर्नमेंट के लिए काम करती है, तो फिर करप्शन फिर वहां से फोर्सिबली इनिशिएट भी होती है। बिकॉज इफ समवन who's paid a very minimal amount और उसको जब दे आर नॉट एबल टू मीट देयर मंथ्स एक्सपेंसेस, रेंट्स आर वेरी हाई, तो फिर कैसे कैसे आप उस बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी ड्यूटी, वो एक तो आपकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है देयर मोस्टली देयर टू क्लासेस, आइदर देयर सिवियरली ओवरवर्क्ड और देयर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। तो ये जो ओवरवर्क्ड क्लास है फिर करप्शन भी वही करती है, उधर लाइक कि मतलब आई एम डूइंग सो मच वर्क, माइट इज गेट समथिंग आउट ऑफ इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। सो ये एक इस तरह का एक साइकिल है, फिर रिडंडेंसी है। इफ यू आर पेड बेटर, इफ योर सॉर्ट ऑफ आपकी लीडरशिप इंप्रूव हो जाए, अगर आपसे एक्सपेक्टेशन इंप्रूव कर दी जाए, एटलीस्ट कोई गोल ओरिएंटेड आपकी गवर्नेंस हो, तो फिर मे बी यू कैन इंस्पायर पीपल टू वर्क फॉर लेस। हाउएवर राइट नाउ इंस्पिरेशन इज हार्डली रनिंग एनीबॉडीज किचन। सो ये एक पॉइंट आता है कि फिर लोग इरिटेट होते हैं एंड दे देन डोंट केयर वेदर योर एक्सप्लेनेशन मेक्स सेंस और नॉट, दे जस्ट केयर फॉर देयर रिलीफ। There's a very famous quotation by I think his name was Keynes. Keynes was a very famous economist. He said कि जब भी लॉन्ग रन की बात की जाती है किसी भी पॉलिसी को लेके कि इन द लॉन्ग रन वील बी बेटर ऑफ, he used to have a saying, he said that in the long run we will all be dead, so nobody cares about the long run. You want to have considerations of the now कि अभी क्या फर्क पड़ रहा है। इन द लॉन्ग रन इफ एवरीबडी इज गोइंग टू बी डेड, तो उससे मतलब क्या है कि भी जो चीज आपको अभी फायदा नहीं दे सकती, व्हाई वुड शुड आई केयर इफ माय ग्रैंड चिल्ड्रन आर बेनिफिटिंग और नॉट। इफ आई एम नॉट हैप्पी, हाउ द हेल माय ग्रैंड चिल्ड्रन आर गोइंग टू एवर बी हैप्पी। सो ये एक है, दिस इज एन इकोनॉमिक अप्रोच कि जी इन द लॉन्ग रन वी विल ऑल बी डेड।
इसका मतलब यही है, कीन्स ये कहता था कि भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग और करंट एग्जिस्टिंग जो आपकी चीजें है ना, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं खर्चेगी तो भी इन्फ्लेशन बहुत वर्स हो सकती है। पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, इट इज प्रोजेक्टेड, दिस इज बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, इज एट 3.9%। जो भी लड़ाई पिछले दिनों चल रही थी ना कि जी 4% नहीं है और ये नहीं, अब ये देखें कि इंडिया डिस्पाइट द वे दे हैव बीन हिट इतनी बुरी तरह फ्रॉम कोरोना, and their growth rate is expected to be enhanced by 10%. Imagine that. And Maldives remarkably 18%, क्योंकि लोग भाग भाग के मालदीव जो चले गए कोरोना। So this was another aspect of our economy कि जी कोविड का जो रिस्पॉन्स है वो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, प्राइवेट सेक्टर्स में, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट में कितना पैसा लगा है, ये जनरल स्टेटिस्टिक बोर्ड के ओवरऑल कैसे चला है। ये हमारा सारा कोविड-19 का रिस्पॉन्स जो इट वाज एक्सटर्नली फंडेड ऑलमोस्ट, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि 19 प्रोजेक्ट्स तो सिर्फ एडीबी के हैं, वो को फाइनेंस भी कर रहे हैं, वो आपको वैक्सीन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक ओवरऑल 9 बिलियन का एप वैक्स पैकेज है विच इज प्रोवाइडिंग इन सीरीज, आपको बहुत सारे वैक्सीन के डोजेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो खाली एडीबी की फंडिंग, ऑब्वियसली यू आर गेटिंग this aid from other countries also. अच्छा, अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है, I've shared this because it presents a very different picture than what actually is. अब thing is कि the difference in anti-corruption debt Punjab's performance during PTI government and PMLN's 10 years is clearly visible in the results achieved so far. अब वो ये कह रहे हैं कि in the last 31 months of our government in Punjab, anti-corruption recovered rupees 220 billion in contrast to the dismal record of PMLN government's 10 years. 2.6 billion worth state land recovery under PMLN's 10 years. Cash recovery is 2.35 billion as compared to only 430 million during PMLN's 10 years. Indirect cash recovery now stands at rupees 26 billion in contrast to zero during PMLN's last 10 years. Okay. On the face of it, you would feel कि शायद बहुत ज़्यादा difference है numbers का। अब इसमें दो चीजें याद रखिएगा, like I said, if it sounds too good to be true, it is probably not true, or at least not entirely true. What the figures your prime minister has presented are absolutely true. जो figures है ना बिल्कुल ठीक बताएं, लेकिन वो एक चीज यहाँ पे आप उन्हें बताना भूल गए कि जब रुपए की कदर बढ़ती है, चीजों की प्राइस इंक्रीज होती है, तो the land that was worth something else in 2000, जिसकी अब जैसे आपको पता है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 2 to 500%। इसका क्या मतलब है कि आज से 10 साल पहले अगर 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी थी तो वो 5 से 6 करोड़ की हो गई अब। सो लैंड परचेज वैल्यू और जो आपने छुड़वाया, अगर वो फिर डिफरेंस अगर आप उसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करें, आज देखें ना 10 साल पहले के आप नंबर्स लेके कंपेयर कर रहे हैं आज से, तो फिर उसको कन्वर्ट भी करें आज के पैसे में और रियल वैल्यू निकालें, तो फिर शायद ये फासला कम हो जाएगा, शायद इनका भी ज्यादा ही हो रिकवरी रेट, लेकिन बहरहाल इतना फर्क नहीं होगा जितना आपके प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं। यू कैन नॉट कंपेयर टुडेज मनी विद मनी और वैल्यू ऑफ समथिंग 10 years ago, वो बहुत फर्क होगा उसके अंदर। आज से 10 साल पहले पेप्सी कोक की प्राइस क्या थी आप लोगों को भी पता है, और अब कितनी है पर बॉटल। आज से 10-20 साल पहले किसी लैंड की प्रॉपर्टी क्या थी, आज से 10 से 15 साल पहले, ऑलमोस्ट इफ यू गो फॉर लाइक 15 years ago, अ प्लॉट ऑफ लैंड इन बनीगाला या इन ये सांबाद के उन एरियाज में जो भी डेवलप नहीं हुआ था, वो क्या था और आज क्या है, ये कंपैरिजन निकाल के देखिए, एंड देन यू विल रियलाइज कि इतनी इंक्रीज हुई है प्रॉपर्टी के प्राइसेस कि दीज नंबर्स डोंट रियली मीन मच एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि फिर आपको ये रियलाइज होता है कि फिर उनकी भी रियल टर्म्स में जो उन्होंने रिकवरी की और रियल टर्म्स में जो आपने रिकवरी की, शायद उसका फर्क इतना नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। क्योंकि this is why anybody in your leadership should always have a background in economics, क्योंकि अगर वो नहीं होगा
तो फिर इस तरह की जो नंबर्स प्रेजेंट किए जाएंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि यू वुड फील कि एज इफ दे वर वेरी करप्ट। ऑब्वियसली मुल्क तो वो भी चला ही रहे थे ना, ये तो कोई डिनाई नहीं कर रहा कि करप्शन चार्जेस थे उनके ऊपर एंड एवरीथिंग। हाउएवर रियल टाइम में जो फैक्चुअल रियलिटी उसको उसके कंपैरिजन से देखा जाता है। अब इनडायरेक्ट कैश रिकवरी नाउ स्टैंड्स एट 26 बिलियन। अब कैश रिकवरी जो होती है वो ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स होती है, वो एक साल में नहीं होती। दैट मीन्स कि अगर किसी पे केस चलाए गए थे, 10 साल लग जाते हैं लिटिगेशन में पाकिस्तान के अंदर एवरेज, तो दैट मीन्स कि केसेस जो शुरू हुए थे आज से 10 15 से 20 साल पहले, वो अब वाइंड अप होना शुरू हुए और बहुत सारे लोगों को रिकवरी और डैमेजेस पड़े। सो यू कैन नॉट कंपेयर दिस, कंपैरिजन ठीक नहीं है। फिर इस गवर्नमेंट की जो एक पॉजिटिव बात है कि उन्होंने विसल ब्लोअर एक्ट को पुश किया है, अभी स्टिल पेंडिंग इन द नेशनल असेंबली। वो ये है कि जो लोग करप्शन के खिलाफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी। अभी तक नेशनल लेवल पे ये पास नहीं हुआ, केपीके में सम वर्जन ऑफ दिस इज फंक्शनल नाउ। अच्छा, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया जी ये वाला आपको? आई थिंक यू मीन के ये 10 साल पहले रियल टाइम में किस तरह से पैसे कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, ये देखिए इकोनॉमिक्स में होता है। देखिए ये मैं अब आपको किस तरह समझाऊं। देखिए हर साल इन्फ्लेशन होती है, हर साल महंगाई बढ़ती है। जैसे आपको पता होगा कि आप इस तरह ले लें, कभी अपने नाना दादा या दादी वगैरह से पूछिएगा कि जब उनके जमाने में समोसा कितने का आता था या कोल्ड ड्रिंक 1 रुपए की होती थी, 2 रुपए की होती थी, तो दैट वो रेट होता था उस जमाने का। अब 90s अर्ली 90s में एक पुलिस वाले की या एक सिविल सर्वेंट की तनख्वाह क्या होती थी? आज से 15 साल पहले एक प्रोबेशनरी एंट्रेंट ऑफिसर की तनख्वाह सीएसए में, विच इज सिविल सर्विस एकेडमी, वाज अराउंड 6 to 8,000 रुपीज। अब आपको लगे कि शायद ये तो बहुत कम पैसे हैं, लेकिन उस जमाने की अगर आप परचेजिंग पावर देखें, परचेजिंग पावर से मुराद ये होती है कि जो चीजें नॉर्मल खरीदो फरोख्त की, कि तेल की, चीनी की और जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनकी कीमत भी कम। तो फिर ये कंपैरिजन होता है कि आप ये देखते हैं कि पहले क्या थी और ये अब क्या है। मैं इसको कंपेयर यहाँ पे इस तरह कर रही हूँ कि जी आपने, जैसे अभी इमरान खान साहब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जी स्टेट लैंड वर्थ 192 बिलियन हमने रिकवर किया, यानी कि अभी हमने जमीन वापस ली है गवर्नमेंट की जिसकी वैल्यू है 192 बिलियन। ठीक है, अब वो कंपेयर कर रहे हैं 10 साल पुराने पैसों से जो कि 2.6 बिलियन है। अब मैं ये कह रही हूं कि आज से 10 साल पहले 22.6 बिलियन वर्थ ऑफ लैंड वुड हैव बीन समथिंग एल्स। यानी अगर उतने ही लैंड को अब आप कन्वर्ट करें राइट नाउ टुडे, तो शायद ये जो 2.6 बिलियन जिसे वो कंपेयर कर रहे हैं वो नंबर 100 बिलियन तक हो। दिस अ गुड चांस कि शायद वो नंबर 50 बिलियन तक हो, मतलब वो 2.6 बिलियन नहीं होगा कम से कम। ये बात मैं कर रही हूं कि वो आज से 10 साल पुरानी लैंड की कीमत को आज की लैंड की कीमत से कंपेयर कर रहे हैं, विच इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। ये बात मैं कर रही हूं आपसे, क्योंकि लैंड की प्राइसेस इंक्रीज हुई है बहुत ज्यादा। आपकी आपकी जो रियल एस्टेट मार्केट है वो एक्सप्लोड की है लास्ट 10 years के अंदर। तो अब तो लैंड की वैल्यू आउट ऑफ कंट्रोल है, 10 साल पहले नहीं थी। तो हो सकता है उस जमाने में 2.6 बिलियन वर्थ ऑफ स्टेट लैंड वुड, आज अगर उसको कन्वर्ट करें तो शायद उनके भी इतने ही पैसे बन रहे हैं, हु नोज। पर ये कंपैरिजन नहीं किया। देखिए हमेशा कंपैरिजन रियल टाइम में किया जाता है, विच मीन्स कि आज के हिसाब से उस जमाने का जो उन्होंने रिकवरी की थी क्या वो हमारे से कम है या ज्यादा। तो आप लैंड की अमाउंट का जिक्र करें ना कि जी इतने एकड़ लैंड हमने जो है वापस लिया है, रादर देन मेंशनिंग कि इतने पैसों का हमने वापस लिया, तो वो फेयर कंपैरिजन कि जी इतने 1000 एकड़ लैंड हमने छुड़ाया था और उन्होंने खाली 2 एकड़ लैंड छुड़ाया था, तो फिर आप ये बात कर सकते हैं, फिर इट इज अ फेयर कंपैरिजन। क्योंकि लैंड की क्वांटिटी नहीं चेंज हो सकती लेकिन लैंड की कीमत पर एकड़ चेंज हो सकती है। सो ये जब आप इस तरह का पैसों का कंपैरिजन देखते हैं ना अक्रॉस ईयर्स, तो हमेशा उसमें गड़बड़ होती है, ये बात याद रखिए।
अच्छा, अब ये हमारी फोरकास्ट है पोटेंशियल की 2021 22 के अंदर पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो 3.2% के हिसाब से होगी। और अल्टीमेटली अगर हमारी जो कोविड-19 की चौथी वेव अभी इस वक्त चल रही है, अगर ये नेक्स्ट ईयर तक काबू आ जाती है, कुछ कंट्रोल हो जाते हैं मामला, सो देन मे बी वी आर लुकिंग एट अ पोटेंशियली हायर ग्रोथ रेट। हाउएवर, यही कहा गया है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गारंटी नहीं हो सकती तो द रिस्क ऑफ सॉर्ट ऑफ अकाउंट ऑब्लिगेशंस का खराब हो जाना या आपके पैसे पेमेंट्स आप ना कर पाना और करप्शन की कंट्रोल ना कर पाना, तो जनरली इश्यूज रहेंगे। और जब तक आपके अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होते, आपकी एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट रहेगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये कुछ एक मैंने इन्फोग्राफिक शेयर किया था, दिस विल टेल यू अबाउट द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज और पोस्ट कोविड फोरकास्ट कि कोविड का आपकी डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ है पावर, डिमांड, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पर। ये 2020 तक के आपके फिगर्स हैं। और थोड़ा सा आपको अगर ग्राफ में देखें तो आपको पता चल रहा है कि जी 21 में ये फ्लैट लाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब यही प्रोजेक्टेड है कि जी ये ऊपर की तरफ को नहीं जाने वाले, ये बस रिकवरी मोड में ही होंगे अगले 2-3 साल। दैट इज द जनरल प्रोजेक्शन बाय मेनी इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स। वो यही एज्यूम करते हैं कि जनरली जो है इतना कोई सब्सटैंशियल चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आईएमएफ कमिटमेंट्स इतनी ज्यादा हो गई हैं अब, और कोविड के साथ उनको मैनेज करना इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज ऑफ एनी गवर्नमेंट इन और आउट ऑफ द सिस्टम राइट नाउ। अच्छा, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस एक और एस्पेक्ट है। पाकिस्तान की इस वक्त गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस स्कोर जो है इट इज 31.73 विच रैंक्स इज अ लोएस्ट परसेंटाइल। पाकिस्तान हाईएस्ट अगर गया है गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस 100 में गया है, which was in 2020 we hit that for a few minutes, उसके बाद फिर हम वापस अपने उस पे आ गए। एंड हमारा हमेशा सब्सटेंशियली फ्लक्चुएट ही करता रहता है, तो उसमें पार्शली वजह यही है कि गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस हमारा स्कोर कभी भी बहुत हाई इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि वी हैड टू गो थ्रू 3 मार्शल लॉज और एटलीस्ट 2 मार्शल लॉज एंड 1 इमरजेंसी। सो उसके अंदर फिर ये एक प्रॉब्लम रही है थ्रू आउट हमारे साथ कि जी वो आ जाता है तो गवर्नमेंट डिसरप्ट होती है, डेमोक्रेसी डिसरप्ट होती है, इफेक्टिवनेस नहीं होती एंड सिस्टम कोलैप्स करता है, फिर खड़ा होता है, फिर कोई आ जाता है। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री कुछ ऐसी ही रही है। अभी तक कोई फुल टर्म प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का नहीं गुजरा, जैसे 5 साल पूरे किए, अभी तक नहीं है। अब हो सकता है इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी कर ले, finally maybe he'd be the first one to do so, literally the first prime minister in the history of Pakistan to go 5 years without any issues. थोड़ा टाइम है बीच में, देखते हैं। And then comes to the law and order situation, ये भी पाकिस्तान का स्कोर इसमें काफी बुरा है। as you can see कि हम रीजनली भी जो 6 कंट्रीज में जब कंपैरिजन किया जाता है, रीजनली भी पाकिस्तान फॉल्स ऑन द 5th नंबर, and as you can guess the last is Afghanistan. अब इंडिया की भी कोई इतनी बहुत शानदार रैंकिंग नहीं है इधर, लेकिन देर स्टिल बेटर ऑफ देन वी आर। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर में क्या होता है कि जी आपका सिविल जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस, आपकी रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स क्या है, आपकी कोर्ट्स की करप्शन क्या है, आपकी गवर्नमेंट की एक्सेसिबिलिटी क्या है, इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। तो पाकिस्तान इज 118 आउट ऑफ 128 कंट्रीज ऑन दिस इंडेक्स। ये रिपोर्ट है मेरे पास, इसको कहते हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, एंड आई कैन शेयर दिस विद यू गाइस। मैंने आपके साथ काफी रीडिंग्स भी शेयर की हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट, और उनमें से कई आर्टिकल्स हैं जो आपको काफी अवेयर करेंगे इन मामलों के ऊपर कि क्या होता है। सो दिस इज हाउ पाकिस्तान लुक्स। अब अगर आप इसमें देखें कि हमारे ग्लोबल रैंक है, कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर, यानी गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को अच्छी तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकती और कंट्रोल्ड है, उस पर मसले हैं, कदगने हैं। तो वो क्या है जी, ये अब वो इंडिकेटर्स हैं जो कि इसका स्कोर आपका बनाते हैं। दिस इज स्कोर फ्रॉम 2020, इट हैज नॉट बीन अपडेटेड एज ऑफ येट। तो पाकिस्तान रैंक 79, यानी कि सारे इन ममालिक में से 79th नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर। एब्सेंस ऑफ करप्शन वंस अगेन 116, वी स्कोर पुअरली, और हमारा स्कोर चेंज भी नहीं। आप देख रहे हैं कि हमारी जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो कितनी परसेंट है, -0.03। ज्यादातर हमारे ओपन गवर्नमेंट में तो और हम नीचे चले गए ज्यादा होने के बजाय।
order and security में भी 0.01 improvement, terrible. And you are constantly ranked lowest in the region. मतलब चौथे नंबर पे, maybe you are beating perhaps Iran in a few cases, otherwise तो you absence of corruption में only Afghanistan is lower than you, regionally speaking. Criminal justice system में access कोई आपकी change नहीं हुआ, there's been no improvement. And आप generally आपका स्कोर बहुत लो है इस पर्स में, and you rank at the lowest percentile. कि ये वो 4, 5, 6, 7 एस्पेक्ट्स हैं. अच्छा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने एक्सेस टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज बयान करने हो ना, तो आप ये जो इंडिकेटर्स यहाँ मौजूद है ना, इनको आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं. कंस्ट्रेंट्स ऑफ गवर्नमेंट पावर, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं. दिस विल गिव यू अ चांस टू स्कोर वेरी हाई इन सच अ क्वेश्चन. अब कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट्स के अंदर भी फर्दर पॉइंट्स हैं. You can see these are ready-made headings for you guys. आप इसको अगर चाहें तो अगर आप headings बना लेना, it's a solid question. कि civil justice में accessibility, affordability का issue है, no discrimination, no corruption, no improper government influence. ये indicators आपको proper एक question का जवाब देने का पूरा एक road map है. आप इनको headings बना सकते हैं उसमें, और फिर further subheadings, and you only have to add numbers and slight writing, and this is a perfect question for you. Look at the wonderful way they have divided this, and आपको पूरा पता है कि इसमें कहाँ improvement आई है और पाकिस्तान क्यों low rank कर रहा है overall. Freedom of expression पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत कम consider की जाती है. Due process of law भी इतना नहीं है ज्यादा. Non-governmental checks almost ना होने के बराबर है पाकिस्तान के अंदर. So generally this is how you have to look at things, कि आपको जब figures, numbers पता चल जाते हैं ना, तो आपको चीजों की reality भी पता चलती है. So this is how Pakistan's criminal justice system, general justice system appears to the world. Public policy and governance, यानी कि आपकी कोई भी policy future की बनती है और उसमें governance में कितनी transparency है. As you can see कि Pakistan started off quite high and then there was a dip in the late 90s. कोई यहाँ पे this marks the arrival of Musharraf, and then it goes back up. Confidence in governance increased. Musharraf के दौर में फिर flat line हुई, फिर गिरी, और फिर हम देखते हैं जी People's Party के दौर में it went up again, and then there was a flat line of governance. ये हम कह सकते हैं कि इसका कुल कला जिम्मेदार हम entirety में People's Party को दिया जा सकता है credit for dropping our transparency of governance and public policy confidence to this level. कि इतना sharply गिरा, ये total discretion People's Party का आप इसको कह सकते हैं कि federal government के अंदर confidence and public policy criteria और governance के अंदर transparency इतनी बुरी तरह गिरी. अजीज का source आपको आगे मैं बताती हूँ. So this is how, and then now we are going upwards, slightly recovering. At least अब आपकी public policy governance के अंदर transparency increase हो रही है, तो जो score is improving. This is a huge credit that goes to this government कि वो आपकी transparency को increase करें. One of the greatest initiatives of this government have been the PM portal कि आपके individual citizens now can complain. अब उसमें से कई complaints resolve भी हो जाती हैं. At least इससे एक जो information और accessibility gap है ना between your bureaucracy and your public, वो काफी bridge हुआ है, reduce हुआ है. So आपकी इस वक्त weak governance indicators रहे हैं. अच्छा, this is a जो report है, ये World Bank की report है. It deals with governance, आपके indicators के साथ वो deal करते हैं. And these numbers are from there. The index of government effectiveness जो है ना, वो आपकी capture क्या करती है? Perceptions of the quality of public service, quality of the civil service, the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation. क्योंकि जो God knows में आप लोग कहाँ allocate होते हैं, अगर आप में से कोई office management group में allocate होता है, which later becomes a secretariat service. So ये जो public policy formulation and implementation, ये हमारा काम होता है. Since I am a part of this, so I know. So ये I think this is the spine of your government कि आपकी government आगे किस policy को form करेगी, क्या होगा और किस चीज को
क्या लॉ बदलेगा, किन चीजों में चेंजेस आएंगे। तो जो आपकी गवर्नमेंट में इस वक्त बैठी ब्यूरोक्रेसी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, विच मीन्स पीपल फ्रॉम योर सेक्शन ऑफिसर लेवल अप, ये आपकी पॉलिसी को डिजाइन करते हैं। मैं आपको अपना बता देती हूँ, मैं इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस आई चेंज्ड द पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट हैड, आई रोट अ समरी फॉर द पीएम, वी चेंज्ड द पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी कोटा। अभी तक बिफोर आई इनिशिएटेड दिस केस हमारी पॉलिसी क्या थी, ये थी कि जी 1 से 15वें स्केल के अंदर कोई डिसेबल्ड बंदा अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट पोजीशन में। दैट मीन्स कि समवन इज एजुकेटेड इनफ तो वो ग्रेड 17 या 16 में अप्लाई नहीं कर सकता, 18 में भी नहीं कर सकता, 19 में इनका कोई कोटा नहीं था। यानी कि उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज की बेस पे उनकी को एम्प्लॉयमेंट उनकी रिजेक्ट की जा सकती है। अब आपने द ब्लाइंड डिप्लोमेट जो खातून जो इस वक्त बैठी है यूएन में, वो बैठी तो है, पाकिस्तान बड़ा क्लेम कर रहा है उनकी सक्सेस को, बट nobody will tell you कि by law she could not have been allocated in the group that she's in. By law she was not, वो तो courts में लड़ के she was allocated. So now when I moved this summary, I ये बार कि जी 15 से ऊपर का नहीं कर सकेंगे ये हटा दिया गया। Now someone with a disability has a reserved quota of 2% against all jobs in government from scale 1 to scale 22. As long as they're eligible, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। Now this is a substantial change in policy, but the only drawback is कि इसका अब जैसे अब ये मैं आपको बता रही हूँ कहानी, राइट, आप लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। Your government doesn't propagate its good decisions. वो इस पे इन चीजों को जो एक इंफॉर्मेशन कैंपेन है वो रन करने से कासिर है, वो नहीं चलाते, तो यहाँ पे ड्रॉबैक होता है। तो फिर एक परसेप्शन जो होती है ना गवर्नमेंट के बारे में वो कमजोरी रहती है पब्लिक की। अगर आप पॉजिटिव चीजों को भी उसी लेवल पे मार्केट करें या शो करें तो मे बी इंप्रूवमेंट आए। अच्छा जी, द ब्लू लाइंस हियर इंडिकेट कि जी पाकिस्तान की जो परसेप्शन है या गवर्नेंस के इंडिकेटर्स हैं वो नेगेटिव में रहे, विच इज व्हाई द चार्ट इज डाउनवर्ड्स। ये इसलिए डाउनवर्ड्स है क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी पे तो आपकी रेटिंग कभी ऊपर की तरफ गई नहीं, आप 1 से ऊपर जाते तो आपकी ये ब्लू लाइंस ऊपर होती, ये सारी नीचे हैं। ये आपकी परसेप्शन को इंडिकेट कर रही है कि गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस के ऊपर आपका जो स्कोर है वो 1 भी नहीं अचीव हुआ, वो माइनस में ही चल रहा है इस वक्त। दैट मीन पाकिस्तान स्कोर्स वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड गवर्नेंस के हवाले से। कि ये जो फैक्टर्स है ना, जो पब्लिक सर्विस, क्वालिटी ऑफ सिविल सर्विस, डिग्री ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर्स, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पाकिस्तान के जो लोग हैं और जनरल परसेप्शन जो इनके बारे में वो बहुत नेगेटिव है, विच इज वाई आपका जो ये स्कोर है ये इंप्रूव ही नहीं हुआ। वही वाली बात की इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा ब्रिज है, गैप है। सो अब आके थोड़ी इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई और ये इंप्रूव हो रहा है स्कोर, एंड राइट नाउ 2020 में इट हैज तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट आई है, पहली दफा इतनी 0.55 पे आ गया। हो सकता है इवेंचुअली आपकी अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए तो ये और भी इंप्रूव हो जाए स्कोर। सो फिर उसके बाद हम आते हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे के ऊपर। ये भी रिसेंटली किया गया था और इसमें पाकिस्तान की जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज हो, वही वाली बात की जैसे जैसे आप डिजिटल पाकिस्तान की तरफ बढ़े, डिजिटल मेजर्स लिए जा रहे हैं और जितनी जितनी लेजिस्लेशन हो रही है और काफी चीजें ठीक होने की तरफ बढ़ रही है, हो तो नहीं गई पर एटलीस्ट ठीक होने की तरफ बढ़ रही है। उस दौरानिया में वो जो पेनफुल चीजें हो रही हैं कि जी महंगाई बढ़ रही है, करप्शन पे क्रैकडाउन हो रहा है, तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके भाग रहे हैं। So it sort of is going to be a difficult time. The next 2-3 years are going to be very difficult for this country. लेकिन at least आपकी environment की जो अंदर confidence है आपके मुल्क के अंदर business point of view से वो improve हो रहा है. It is definitely improving और उसका score बढ़ रहा है. Now, so this is an important topic. Women in Pakistan, there's a good chance कि इस हवाले से आप लोगों के सवाल specifically gender-based violence के हवाले से आप लोगों को question आ सकता है. जेंडर स्कोर कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पाकिस्तान कोई खास इतना इम्प्रूव नहीं किया है. वी स्टिल रैंक एज वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज फॉर वुमेन टू बी बोर्न इन और लिव इन,
and I know that men in our country find this very hard to believe, but it is, you know, true. The numbers are right in front of you. आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत हॉरिबल है, आपकी वेज इक्वालिटी ना होने के बराबर है, आपका कंट्रोल ओवर योर मनी is non-existence, your involvement in policy decisions is also non-existent. आपके legal sphere के अंदर female lawyers बहुत थोड़ी हैं, female practicing doctors बहुत थोड़ी हैं, आपकी health life expectancy चोर और वर्क डिवीजन ना होने के बराबर है। एजुकेशन अटेनमेंट में कि आपके मुल्क में इलिटरेट लोगों में से 60% खवातीन है, यानी कि इलिटरेसी में भी अनपढ़ खवातीन ज्यादा हैं और मर्द कम है। विमेन इन पार्लियामेंट जो है वो फोर्सेबल है, पर उनकी पावर एग्जर्शन भी कम है, और मिनिस्टेरियल पोस्टों में भी खवातीन ना होने के बराबर है। और आप नोट करेंगे कि ना किसी पावरफुल मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी कोई खातून होगी और ना ही किसी पावरफुल मिनिस्ट्री की मिनिस्टर कोई खातून होगी। खवातीन को मिनिस्ट्रीज दी जाएंगी ह्यूमन राइट्स, जिसका एक्चुअली फिजिकली काम बहुत थोड़ा है या ना होने के बराबर है, या दी जाएंगी क्लाइमेट चेंज। वंस अगेन, you would not find a female secretary in the position of finance, you will not find a female minister in the position of ministry of finance. आप रेवेन्यू डिवीजन में देखेंगे तो आपको वहां पे भी कोई खातून सेक्रेटरी नजर नहीं आएंगी और आपको कोई खातून मिनिस्टर नजर नहीं आएंगी। आप कम्युनिकेशंस की तरफ जाएं, यू वुड नॉट फाइंड अ फीमेल सेक्रेटरी और अ फीमेल मिनिस्टर, बिकॉज इट इज अनहर्ड ऑफ, बिकॉज द जेंडर परसेप्शन जो है कि मेल privilege and power controls this. Let me tell you a very hard hitting fact, at least अगर कोई खातून सुन रही है तो मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताती हूँ हमारे सिस्टम की, कि it would not matter if you landed in DMG or you were in information group. Quite literally, you at least will be treated the same. In the services, अगर आप एक खातून हैं तो आपकी perception, आपकी importance would not matter whichever group you are in. You would have to be extremely cutthroat, extremely badmeez, and you would have to really fight every year of your service to be treated as the same as your male counterparts. And even then, the chances of you becoming a secretary establishment, finance, or principal secretary to the PM are almost non-existent. बहुत मुश्किल है कि आप पावर कॉरिडोर में फिर भी पहुंचे, जो कि रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज की हैं। आपको अगर कभी बनाएंगे भी सेक्रेटरी तो ये एजुकेशन या सेकेंडरी हेल्थ एंड थिंग्स लाइक दैट, नेवर इन अ पोजीशन ऑफ पावर यू वुड फाइंड योरसेल्फ। सो दिस इज एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ बीइंग अ वुमन इन दिस कंट्री। फिर एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू सेफ्टी एंड एक्सेस टू राइटफुल जस्टिस इंफॉर्मेशन, ये सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर मेंटेन। मेनी अदर कंट्रीज सफर फ्रॉम इट, बट क्योंकि पोजीशन ऑफ पावर जो है वो क्लेम कर सकते हैं दूसरे ममालिक, जैसे आप कहते हैं ना इंडिया में रेप केसेस बहुत ज्यादा है, यस दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। हाउएवर दे आल्सो हैव 5 फीमेल चीफ जस्टिसेस इन देयर सुप्रीम कोर्ट। योर्स फर्स्ट वाज एलिवेटेड और उस पे भी लड़ाई होगी कि जी उसको नहीं होना चाहिए। सो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। जी जी बिल्कुल, डिस्टेंस टू पैरिटी है। देखेंगे ये जेंडर डिवीजन है कि जी क्या एस्पेक्ट फॉल कर रहा है, दैट मींस कि अभी डिस्टेंस कितना है, गैप कितना है, ये उसके हवाले से ये रिपोर्ट भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो यू कैन गो थ्रू द रूब्रिक योरसेल्फ, आपको समझ भी आ जाएगी कि परसेंटेज कैलकुलेट किस हिसाब से होती है। तो ये जो जेंडर जो गैप है ना ऑन दीज पॉइंट्स के कितना इस वक्त है, वो उसकी कैलकुलेशन की गई है। तो डिस्टेंस टू पैरिटी का मतलब ये है कि अभी इतना फासला है जहां पे जाके हम इक्वालिटी अचीव कर सकती हैं खवातीन पाकिस्तान के अंदर। सो अभी ये है आपका डिस्टेंस टू पैरिटी। बेशक इस रेशो को अगर आप इग्नोर भी कर दें तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, दैट्स नॉट एन इशू। ये नंबर्स जो है ना, स्कोर, कि आप रैंक कहाँ कर रहे हैं दुनिया में इस वक्त, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये distance to parity is a technical term. I would not advise mentioning this in the exam. So फिर इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि अभी पाकिस्तान में अभी MPA जो है आपकी ज़हरा नकवी has moved in a German motion
over killing of 81 women across the province in Punjab only. So 90% of women experience domestic violence in their lifetimes in Pakistan. It's a huge number, huge. And which is मतलब अभी तो पाकिस्तान का स्कोर थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है, 153 पे चले गए, जबकि आपके पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान was ranked the second worst country in the world for women to be in. Imagine that. That is how poorly we scored overall. And obviously our score has fallen severely since 2006. अब आपका स्कोर much worse. पहले आप 112 पे थे and now you are 153. That means कि clearly हालात worse हुए. Apparently लगता है कि चीजें बेहतर हो रही है, apparently चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं, because आप सिर्फ increasing the number of women is not the problem, it's also accessibility to resources. Anna, that's a good question. Saima Salim got into the power corridor UN speech in front of the world on behalf. अच्छा, अब मुझे कोई बता सकते हैं कि उस स्पीच जो उन्होंने यूएन में दी उस पे उनका क्या कहते हैं अटेंडेंस क्या थी और एक्चुअल इम्पैक्ट? इट was not even a general UN session. It wasn't even full attendance. It is just an optical sort of move by your आपकी डिप्लोमेसी ने अपने आप की ने वो थोड़ा to appear more inclusive to the world. So these are just one of those actions. It was not a full attendance session. It wasn't even an important session. आपकी जो diplomat, she's just a permanent representative in the UN. That means कि she attends every session. So this is her speaking in front of the session. और फिर जब वो जवाब दे रही हैं तो उस वक्त कितनी attendance है? या आपका कंट्री तो उसको दिखाएगा because it is a source of pride nonetheless. अब सवाल ये पैदा होता है कि do you think this woman can become the secretary of क्या कहते हैं foreign affairs in your country? That is the question. Would they make her the ambassador of a country? They will never make her the ambassador of the country. ये चीजें आपको समझ में आएंगी इंशाल्लाह जब आप सब सर्विस के अंदर आएंगे, फिर आपको समझ में आएंगी कि पावर कॉरिडोर क्या होता है. ये जिस पोजीशन पर वो इस वक्त मौजूद है, दिस इज नॉट अ पावर कॉरिडोर, लेट मी टेल यू. दिस इज कंसिडर अ वीक पोस्टिंग. आपकी फॉरेन सर्विस की अच्छी पोस्टिंग्स होती हैं वो एम्बेसडोरियल कंट्रीज के अंदर होती हैं. दिस इज नॉट अ वेरी गुड पोस्टिंग. परमानेंट मेंबरशिप यूएन की जब दी जाती है तो उसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन और उसमें भी आप एक सेशन में मौजूद हैं. यू आर नॉट द एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव, वो कोई और होगा. शी इज जस्ट वन ऑफ देम. सो ये चीजें ना देखते हुए ऑप्टिक्स से हट के देखें कि क्या नजर आ रहा है. वो तो परेड में भी और गार्ड में भी आपको 10-15 खवातीन नजर आ जाएंगी, पर क्या उनकी एक्सेसिबिलिटी टू गेट टू द टॉप वही है जो एक आदमी की है? ये सवाल है. लाइक आई एम सेइंग दिस टू यू कि फाइंड मी अ फीमेल secretary to finance establishment division cabinet or what's it called, the principal secretary to the PM. ये ढूंढे, ये हैं आपके पावर कॉरिडोर्स आपके कंट्री के. तो यहाँ पे आपको बंदी कोई नहीं मिलेगी, खातून नहीं मिलेगी. There was only maybe one woman and she was also there partly because of the connections of her husband, not herself. So this is the problem. आपके मेल connections के थ्रू आप पावर कॉरिडोर में आ सकते हैं, not otherwise. जी, my point exactly. Male connections. मलिया लोधी has extreme male connections. उनको रिसर्च करें आप. फिर नंबर ऑफ वुमेन देखें ना वर्सेस पाकिस्तान की पेरेंट सेंसस के हिसाब से खवातीन ज्यादा हैं आपके मुल्क के अंदर. राइट, यू आर मोर देन हाफ द पॉपुलेशन. सो योर नंबर ऑफ योर एक्सेसिबिलिटी इन टॉप पोजीशंस, आप एजुकेशन पे ज्यादा परफॉर्म करते हैं कॉन्स्टेंटली. खवातीन गेट बेटर ग्रेड्स थ्रू आउट देयर सेकेंडरी स्कूल्स, बेटर ग्रेड्स. आपकी टॉपर्स भी खवातीन ज्यादा होती हैं, टॉप 100 में भी ज्यादा स्कोर करती हैं. सिविल सर्विस में रिमार्केबली आपकी खवातीन उतनी क्यों नहीं आ पाती? अचानक से क्वाइन फ्लिप हो जाती है और बंदे ज्यादा नहीं लगते. I'll tell you why. Because FPSC would never induct more women than men, irrespective के उनका आपसे मेरिट ज्यादा है कि नहीं. Because they don't want more women in the service. अगर ओपन मेरिट एक्चुअल फ्री रियल मेरिट कर दिया जाए तो शायद 100 की 100 पोजीशंस जो है वो खवातीन के पास चली जाए. पहले मर्द एक्चुअली कम हो जाए सर्विस के अंदर. ये एक रियलिटी है. सो ये मेंटेन किया जाता है आपके कंट्री के अंदर बिकॉज एक सिस्टमैटिक बार है टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट.
आपकी कंट्री के अंदर एक्सेसिबिलिटी टू पावर नहीं मौजूद। अगर आपने एक्चुअल एक्सेसिबिलिटी टू पावर या पैरिटी देखनी है ना, तो आप ममालिक खोलें, न्यूजीलैंड आप देखें, आइसलैंड, एंड इवन इन द यूएस देयर इज फार मोर पैरिटी, इवन इन सऊदी अरब देयर इज मोर लैंड एक्सेस और कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज ज्यादा है सऊदी अरब, हालांकि दे डोंट लेट देयर वुमेन ड्राइव, लेकिन उनकी हेल्थ और एक्सेस टू मनी एंड फाइनेंस एंड दूसरे राइट्स आपसे ज्यादा है ना, उनकी मोर्टेलिटी रेट आपसे बेहतर है, उनके एजुकेशन रेट आपसे बेहतर है, विच इज व्हाई दे स्कोर हायर। सो ये बहुत सारे पॉइंट सिस्टम्स हैं, और जो रिपोर्ट है ना वो पॉइंट वाइज चलती है, आप उसमें एक्चुअली विजिट करके देखें, आपको समझ में आएगी कि कहाँ कहाँ चीजें एक्चुअली फेल कर रहे हैं हम, और कहाँ पे गैप और मसले आ रहे हैं। सो द लास्ट पॉइंट इज एजुकेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो खवातीन हैं, गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल आर 13.7 मिलियन, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है ईपाम की, उसके अंदर से लिए गए। 55% women, girls, and then boys out of school are 11.4 million. Now you can, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन खवातीन अचीव करी तो वो तो बहुत ही थोड़ी है। तो बाय द टाइम यू रीच मास्टर्स या कोई पीएचडी लेवल तक, खवातीन तो बहुत ही थोड़ी हैं उस पॉइंट पर, मतलब मोस्ट ऑफ देम विल ग्रेजुएट बट नेवर रीच मास्टर्स डिग्री, जो आपकी पढ़ी लिखी खवातीन, दैट फॉर्म्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। अब एन एस्टिमेटेड 2.28 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, और पाकिस्तान ने has the world's second highest number of out of school children, उसमें भी ज्यादातर खवातीन है। Now this will obviously contribute to your poor scoring in gender parity also, तो वहां पे भी कंट्रीब्यूट होता है। और फिर 16 साल की उम्र तक ज्यादातर खवातीन ही स्कूल नहीं जा रही, तो फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन भी सफर कर रही है। आपकी जो रिपोर्ट एजुकेशन की जो ईपाम ने पब्लिश की वो 3 साल लेट पब्लिश की, और जनवरी 21 में वो पब्लिश हुई है, और उसके अंदर से आपकी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का वो स्टेटिस्टिक ही नहीं मौजूद ऊपर से। सो दैट आल्सो शोज के पुअर गवर्नमेंट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो फॉल्ट हियर। यूथ ऑफ पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स इस वक्त ये हैं कि जी 70% आर लिटरेट। अच्छा, 70% लिटरेट आपके काउंट हो रहे हैं उस बेसिस पे कि जो लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं ना, तो उनको भी आप लिटरेट कंसिडर करते हैं। 30% लिटरेट वो लोग आपके कंसिडर हो रहे हैं यहाँ पे जो कि अपना नाम भी नहीं लिख सकते, यानी बिल्कुल बेसिक प्राइमरी एजुकेशन की बेस पे आपको लिटरेट कंसिडर कर लिया जाता है पाकिस्तान के अंदर। सो दिस फिगर इज ओवर इन्फ्लेटेड एक्चुअली। और लेकिन अब लिटरेट सिर्फ यहाँ बात हो रही है, एजुकेटेड नहीं, सिर्फ लिटरेट की बात हो रही है। फिर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है 11 से 12वीं तक जो एक्चुअली पूरी कर रहे हैं और उससे ऊपर जा रहे हैं, वो आपके सामने कि 6 से 10वीं क्लास या 6 से 10 साल तक की एजुकेशन वो 40% लोगों की है। 12वीं तक 9% पब्लिक आपकी यूथ जो है वो पहुंच रही है, और सिर्फ 6% आपकी यूथ वो है जो कि 12वीं से ऊपर जा रही है। These are horrible statistics for your education. तो यानी कि 70% लिटरेट आप किस बेस पे कर रहे हैं कि जिन्होंने 5वीं तक भी पढ़ा। तो दिस इज नॉट रियली अ गुड स्टेटिस्टिक फ्रॉम दैट एस्पेक्ट। अब जो 39% डिप्लॉयमेंट है उसमें आप देखें 37% मेल है और 2% फीमेल्स है खाली। 61% आर अनएम्प्लॉयड, जिसमें से 57% आर नॉट सीकिंग अ जॉब, उसमें से 41% खवातीन है। सो आप इसमें एक्सेस रेशियो देखिए कितना बुरा है, और the ones that want to seek a job उधर access ratio बराबर है, and the chances of a woman getting a job out of these situations is much lower than, क्योंकि ये low educated class है सारी इसमें। फिर इसमें डिजिटल एक्सेस का भी इशू है। 85% जो है उनकी कोई एक्सेस ही नहीं है टुवर्ड्स अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, वो भी फिर एक और प्रॉब्लम है। अभी पाकिस्तान ने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सवाल आपको आ सकता है तो वो ये सिंगल नेशनल करिकुलम जो लॉन्च किया पीएम ने 16 अगस्त को, और ये सिंध की बहुत सिवियर रेजिस्टेंस इस प्रोग्राम के अगेंस्ट, तो वो उस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक तो चार्ट है जिसको आप वर्बैटम लिख सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, विच इज द पीटीआई's 4-pronged strategy. दिस इज एन एक्चुअल फिगर from your policy papers from the education department, और वहां पे ये लिखा हुआ है कि जी ये उनके 4 गोल्स हैं जिसकी बेस पे उन्होंने एक सिंगल करिकुलम को इंट्रोड्यूस करवाया है। अभी पाकिस्तान ने नया टारगेट अपना रखा है कि भी जनवरी 21 तक जो है
देयर इज अ पॉइंट कि 58 to 70% जो है उनको एक्सेस दी जाएगी स्कूलिंग की, बेसिक स्कूलिंग उनकी इंप्रूव कर दी जाए. 22.8 मिलियन स्टूडेंट्स विल बी केटर्ड टू. और जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, उसके हवाले से एक रीडिंग मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी हुई है, विच विल कवर इन डिटेल. उसमें आप मुख्तलिफ एस्पेक्ट सोच सकते हैं, मगर वो बेसिक कवर कर देता है कि जी इश्यूज क्या है. एक तो प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स कभी भी फुली इस प्रोग्राम को अडॉप्ट करने के हक में नहीं थे और ना है. दे डोंट वांट टू डाउनग्रेड देयर एजुकेशन. वो चाहते हैं कि जी हम ऊपर लेके जाएं, हम बाहर की किताबें पढ़ाएं. तो अब ऑल्दो द करिकुलम हैज इट्स एडवांटेजेस कि एक्सेसिबिलिटी और एक प्लेइंग फील्ड पे लाया जाए, लेकिन ऊपर जाने वाले लोगों को पीछे खींच लेना इज नॉट द आंसर, एंड ना ही नीचे सर्वाइव करने वाले लोगों को ऊपर खींचना. यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन जहां पे इनकी एक्सेसिबिलिटी तो एक हो, लेकिन रिसोर्सेज भी फिर उतने होने चाहिए. So that was basically the end of this lecture. Let me stop the recording. अब